Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Okay, so we meet once again and we continue with our chapter based on partnership final accounts. Let me introduce to you the two gentlemen who will help us solve a problem today. नाम क्या है इनका? पहले का नाम है मिस्टर सापरे, दूसरे का नाम है मिस्टर आट्रे. ओके, दोनों लोग काफ़ी मनमौजी लोग हैं. ओके, अपने चिल एटीट्यूड में काम करते हैं. लेटर ऑन आप इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं देखोगे, क्योंकि जो इनके बीच का रेशो है वो है सिंपल 1:1. बिफोर आई गेट स्टार्टेड with today's question, quick reminder, were you there for the last lecture? If you were not, then हाथ जोड़ के विनती है हमारी, आप उस लेक्चर में चले जाइए, वो लेक्चर को देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए. बिकॉज आपको एक दो आइटम है, जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बगल में दिया गया है प्रोविडेंट फंड. आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये समझाया, बट इस लेक्चर में नहीं, मैं हल्का हल्का रिपीट कर दूंगा. प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया है, तो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त है आपसे, प्लीज़ पिछले लेक्चर में जाइए, उसको देख लीजिए और वो कनेक्शन यहाँ पे आकर अमल कीजिए. देयर आर अ फ्यू आइटम्स जो ये वाले प्रॉब्लम में पुराने हैं, अ फ्यू आइटम्स जो ये प्रॉब्लम में नए हैं. अभी नया पुराना क्या है, लेट मी रिमाइंड यू वन बाय वन. अगेन इट इज़ एन इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, लेक्चर के टाइटल में आपको वो मिल जाएगा. सो क्या है क्वेश्चन में पार्टनर्स का नाम, वो तो हमने पहले ही सीख लिया. ओके, सापरे एंड आट्रे कहाँ क्या है उन्होंने. वेल, सापरे एंड आट्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. सो वी ऑलरेडी नो 1:1. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. तो वो तो हम करेंगे ही. ओके, जल्दी से जल्द मार्किंग कर लेते हैं. चलो भाई कर लेते हैं. डेटर एसेट होता है, परचेज ट्रेडिंग, रिटर्न्स इज क्रॉस कनेक्शन, बट है तो ट्रेडिंग ही. ओपनिंग स्टॉक एसेट, बिल्डिंग एसेट, ओपनिंग स्टॉक वॉज ट्रेडिंग, माई बैड, ट्रेडिंग. कैरेज इनवर्ड आउटपुट दोनों हो सकता है, बट वी अज्यूम इट टू बी inward, very important, we assume it to be inward and therefore we will treat it as trading account. Rent, rates and taxes, P&L. ड्रॉइंग्स पार्टनर्स का है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. सैलरीज P&L. अब बैड डेप हमारा जो बनवा फॉर्मूला है उसके बी में जाएगा, मतलब P&L. मशीनरी इज एसेट. देयर इज सम एक्स्ट्रा भाषण गिवन, एडिशनल ऑन, not new,
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, मैंने 2 या 3 बार ये पढ़ाया है। एडिशनल का मतलब है नया, अगर नया है तो पुराना भी होगा। हाँ, देयर इज़ नो हिडन एडजस्टमेंट, दैट यू अंडरस्टैंड फर्स्ट। कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, बट जब आप एडजस्टमेंट करो तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ के करो कि देयर इज़ अ नया एंड देयर इज़ अ पुराना। अच्छा, हाँ, तो पहले तो आप एसेट मार्क कर लो, बाकी हम एक्सप्लेनेशन में लेटर ऑन दे दूंगा। एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? ओके, अभी आ ही गया है तो याद दिला देता हूँ मैं कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था। दिस वॉज द स्टोरी दैट आई हैड टोल्ड यू कि इन एवरी कंपनी देयर आर 2 पार्टीज। एक होता है ऊपर का पार्टी, एक होता है नीचे का पार्टी। ऊपर का पार्टी कौन है, नीचे का पार्टी कौन है? देखो भाई, ऊपर का पार्टी होता है बॉस, नीचे का पार्टी होता है एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय अपनी मेहनत करता है बॉस के लिए और बॉस उसके बदली में उसको पगार देता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ अ रेगुलेशन विच इज़ कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड, जो वर्कर्स के लिए बनाया गया है, वर्कर्स के बेहतरी के लिए बनाया गया है, सेफ्टी के लिए बनाया गया है। लेट मी चेंज द विंडो वेरी वेरी क्विकली। सो नॉर्मली एवरी मंथ द वर्कर इज पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी, ओके, बट उसको उतना उसके हाथ में या बैंक अकाउंट में नहीं मिलता, थोड़ा पैसा कट जाता है। वो पैसा बॉस काटता है और कहाँ पे डालता है? एक डब्बे में डालता है जिसका नाम होता है प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट ऐसा कहती है, बॉस आपने कितना काटा? 2000, अपनी जेब से भी आप कंट्रीब्यूट करो 2000। तो प्रोविडेंट फंड जो वर्कर का पैसा है उसमें डबल जमा होता है, हमारे एग्जाम्पल में 4000। द कंपनी डज दिस फॉर एवरी एम्प्लॉई, एवरी, जो बड़ा केबिन में बैठा रहेगा या मशीन पे काम कर रहा है, सबके लिए करता है बिकॉज इट इज़ कंपलसरी। बट एवरी एम्प्लॉई डोंट रिटायर टुमारो और मे बी आफ्टर 1 मंथ। वो तो रिटायरमेंट के लिए कंपनी अच्छी रहेगी तो बहुत टाइम के बाद में करेगी। हाँ, सो टिल दैट टाइम दिस कंपनी, दिस बॉस यूजेस दिस प्रोविडेंट फंड का पैसा और वो उसको बैंक में डालते, नॉर्मली सेफ्टी रीजंस के लिए बैंक में, तब उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। और बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जमा हो जाएगा, उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। नाउ देयर वर 4 वर्डिंग्स इन दिस, 4 फ्रेजेस। उसका तात्पर्य मतलब क्या था? स्टार्टिंग विथ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वर्कर का पैसा है बिकॉज दिस पर्सन, वेल ये मेरे पीछे नहीं, मेरे नीचे है, ओके। जब वो रिटायर करे तो बॉस को ये 4000 नहीं, वहाँ पे मे बी 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अ लॉट बिग अमाउंट इज कलेक्टेड, पूरा पैसा देना पड़ेगा। दैट फॉर इट इज़ अ लाइबिलिटी। जो कंट्रीब्यूशन है जो बॉस को अपनी जेब से कंपलसरी करना पड़ रहा है, बॉस को कोई उसमें से फ़ायदा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस। सी मेनी अ टाइम्स ड्यूरिंग द कोविड एरा many companies had to do एक्स्ट्रा खर्चा सैनिटाइजेशन का, ग्लव्स का, मास्क का, ये उनको अपनी जेब से करना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज सेफ टू वर्क इन। तो ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होता है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो एसेट नहीं है, वो इनकम नहीं है, वो लाइबिलिटी है। क्यों? बिकॉज जो वर्कर का पैसा है उस पैसे के ऊपर पैसा कमाया गया है एंड वो ओरिजिनल 4000 जो नीचे था वो भी वर्कर का है और वो 4000 पे 400 जो कमाया गया है वो भी वर्कर का है। दिस इज व्हाट वाज एक्सप्लेन लास्ट टाइम। टुडे वी डोंट हैव एवरीथिंग, वी ओनली हैव अ फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स विच इज़ दैट। एक तो आप नज़र करोगे तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए मैं मार्क करूँगा एसेट। डेबिट साइड ख़त्म हो गया, क्रेडिट साइड पे द फर्स्ट आइटम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी, सन्ड्री इनकम, इनकम नॉर्मल इनकम। सन्ड्री का मतलब सर ये कोई स्पेशल इनकम है? नहीं, आपने में भी लेट्स से ना पेंटिंग कंपनी, भी पेंटिंग कंपनी में उन लोग कोई ना कोई छोटे से व्हाट यू कॉल बकेट में पेंट भरते रहेंगे, ओके। कभी कभी वो बकेट थोड़ा डिफेक्टिव हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे बहुत सारे बकेट्स रहेंगे तो वो बकेट को वो बेचेंगे डिफेक्टिव, उनको पैसा मिल जाएगा रद्दी वाले से। तो वो क्या हो गया, वो उनका मेन इनकम नहीं है। पेंट नहीं बेचा, पेंट का कंटेनर बेचा उन्होंने,
so that becomes sundry income. Okay, P&L account में we write it. Capital is partners capital, provident fund worker का पैसा, liability. Returns, this is a purchase return, trading. ये एक साथ में पढ़ो. Commission pre-received, it is one wording. Well, one wording मतलब एक साथ में है. What do you mean by pre-received? कमीशन पे ध्यान मत देना. प्रीपेड का उल्टा. प्रीपेड का मतलब क्या? मैंने पहले ही भर दिया, दैट इज एसेट. प्री रिसीव्ड का मतलब है मुझे पहले ही मिला, मेरी जेब में कमीशन आ गया, मैंने तो काम नहीं किया, मेरी जेब में कमीशन आ गया, मैंने काम नहीं किया. तो कब करोगे? करूँगा ना आने वाले टाइम में. ओके, वो जो क्लाइंट है ना मेरा, वो एडवांस में दे के गया मेरे को. हाँ, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड इट इन एडवांस. ये आपका पैसा नहीं है, बिकॉज आपने तो मेहनत भी नहीं किया. Therefore, anything which is pre-received, received in advance is a liability. सब में से, बट सर वो जो प्री है ना, प्री, वो तो सर एसेट में आना चाहिए. यस, बट इज इट प्री पेड? बट प्री पेड तो वो डेबिट में आता. प्री रिसीव्ड इज बिल्कुल उल्टा ऑफ दैट. एडवांस में रिसीव्ड, हमारा नहीं, हमारी जेब में है बट हमारा नहीं है, इसके लिए लाइबिलिटी. एंड लास्टली RDD will come in the Banno formula, old RDD. हाँ, so we don't have any hidden adjustments. We do have 6 adjustments above, और उसमें भी सीक्वेंस का थोड़ा डावाडोल है. सीक्वेंस प्लीज़ याद रखना. फर्स्ट अबाउ क्लोजिंग स्टॉक, मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. डेप्रीशिएट, लैंड एंड बिल्डिंग 1 स्टार, मशीनरी 1 स्टार. थर्ड, क्रिएट provision for bad and doubtful debt. Bad and doubtful debt, RDD, debtor को 1 star. And write off 1000 for bad debt. Simple, bad debt, debtor को 1 star. पहले RDD है, बाद में bad debt है. गलत, I mean गलत नहीं, if you solve like that तो गलत हो जाएगा. Please note, bad debt is पास्ट का नुकसान, RDDs फ्यूचर का नुकसान. तो ऑब्वियसली पहले पास्ट होता है, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर. सो ऑन इंटेंशन, जानबूझ के एग्जामिनर ने थर्ड एडजस्टमेंट को थोड़ा घुमा के दिया है. यू शुड नॉट डू RDD एंड देन डू एडिशनल बैड डेट. देन आप ऐसे कर रहे हो ना, कुछ सीरियल्स होते हैं ना, फ्यूचर में जाके वापस आता है. देखो वो सीरियल्स में रहता रहेगा, वेब सीरीज में रहेगा, पिक्चर में रहेगा. अपने लाइफ में ऐसा नहीं होता. अपने लाइफ में पहले पास्ट, बाद में आता है फ्यूचर. तो एडजस्टमेंट 3 के अंदर देयर इज अ गूगली, तो यू हैव टू डू द लास्ट फर्स्ट एंड द फर्स्ट लास्ट. नाउ इससे बड़ी गूगली उसके आगे है. प्लीज रीड, नीचे क्या है? गुड्स वर्थ 3000 was sold but no entry was found in the books of accounts. अभी इसमें कौन सा गूगली है? फर्स्टली ये क्या है? अनरिकॉर्डेड सेल्स. आपने गुड्स बेचे. लेट मी रिमाइंड यू, नॉट उस तरफ, इस तरफ. व्हेन यू सेल गुड्स, यू सेल टू डेटर्स, एंड इफ यू डोंट रिकॉर्ड, नो एंट्री, मतलब आपने लिखा नहीं. ओके, किधर नहीं लिखा? अरे डेटर में भूल गया, अरे सेल्स में भूल गया, अभी लिखता हूँ. ओके, डेटर में लिखो, सेल्स में लिखो. नाउ प्लीज नोट, ये गूगली का क्या चक्कर है? इन एडजस्टमेंट 3 लैटर को फॉर्मर, मतलब लास्ट सेंटेंस को पहले और पहले सेंटेंस को लास्ट में करना है. बट इन 3 and 4 को पहले करना है, दैट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स. फिर 3 को सॉल्व करना है. दैट इज अ लॉट ऑफ स्क्रैचिंग योर हेड. अरे सर तुम्हारा तो बाल नहीं है, ऐसा एक्सप्लेन करोगे तो हमारा भी बाल चला जाएगा. अब मैं करूँ क्या? दैट इज द गेम जो एग्जामिनर ने खेला है, जिसने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया है. ओके, लेट मी रिमाइंड यू, याद दिला सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ. वेन एवर यू डू डेटर्स का एडजस्टमेंट, पहले डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल, ये क्वेश्चन में नहीं है. त्यानंतर येणार अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो वो तो एडजस्टमेंट 4 है. त्यानंतर येणार एडिशनल बैड डेट, वो 3 में लास्ट में दिया है, एंड लास्ट में आएगा न्यू RDD, वो 3 में पहले दिया है. सो अब मैं क्या करूँ? इफ़ द एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट इन डूइंग द क्वेश्चन, हमको भी थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा. बॉटम लाइन वी विल सॉल्व 4,
then I will go to 3, and in 3 I will do the last and then I will do the first. This is the sequence. नया नहीं है, I'm just repeating and reminding. ये पहले हमने किया, 2-3 बार किया है, बट पहले हमने किया है. हाँ, so for this particular adjustment number 4, हमारा जो मार्किंग है वो फिर से सेल्स है और डेटर्स है. तो सेल्स एंड डेटर्स को 3 स्टार है, 5 लाइन रखना, 1 2 3 4 5 लाइन. ओके. हाँ, देन 5th पॉइंट इज आउटस्टैंडिंग कैरेज को हम लोग 1 स्टार कर लेते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट, गुड्स ऑफ 8,000 वर परचेस्ड ऑन 31st March and included in closing stock but not recorded in the books of accounts. खरीदा लिखना भूल गया. 1 मिनट, आंसर यही है. हम उसको पीसी कहते हैं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, वो याद दिलाने के लिए. बट हमारे लिए पीसी क्या है? परचेस एंड क्रेडिटर, बिकॉज यू परचेस फ्रॉम अ क्रेडिटर. तो आप जब भी करते हो तो परचेस में लिखना पड़ता है, क्रेडिटर में लिखना पड़ता है. अब भूल गए बिकॉज दे सेड नॉट रिकॉर्डेड. तो चलो मैं परचेस में लिख लेता हूँ, मैं क्रेडिटर में लिख लेता हूँ. ओके. तो मार्क कहाँ पे करेगा? परचेस को करता हो 1 स्टार, क्रेडिटर को करता हो 1 स्टार. Many students say, but sir, you didn't read correctly or you forgot. Sir, it says included in closing stock. So, is there some gadbad in closing stock, sir? Because they have said closing stock. नहीं भाई, हमेशा जो दिखता है ना उसमें खराबी नहीं होता. Let me explain. Okay? What is closing stock? आपके किचन में बचा हुआ माल, क्लोजिंग स्टॉक. अगर तुमने अंडे खरीदे, एग्जाम्पल अंडा, यू वेंट टू द मार्केट, यू बॉट 1 डजन अंडा, परचेस. घर पे लाया, फ्रिज खोला, फ्रिज में जो ट्रैक होता है, जो ट्रे होता है, यू पुट द 12 अंडास. नाउ इफ यू आर नॉट वेरी हंग्री, तो तुम थोड़ी 12 अंडा का आमलेट बनाएगा. मे बी तुमने 4 का आमलेट बनाया. इन द नाइट, रात को जब सब लाइट वाइट बंद हो गया, फ्रिज बंद नहीं हो गया बट फ्रिज का दरवाजा बंद है, एवरी वेंट टू स्लीप. फ्रिज के अंदर तुम्हारा अंडे का क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जैसे 12 लाया था, 25 से 4 का हमने अंडा बना लिया, आमलेट, 8 बाकी है. तो वो क्लोजिंग स्टॉक, आई रिपीट, कहाँ से पैदा हुआ? जो परचेज किया उसमें से. हाँ, तो बराबर है ना. क्या बराबर है? इफ यू रीड हियर, एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक. अब जो खरीदोगे वो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा ना, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज मेड अप ऑफ व्हाट यू बाय. जो परचेज करते हो उसी से तो क्लोजिंग स्टॉक बनता है. सो प्लीज नोट. सर इंक्लूड क्यों किया? एक्सक्लूड करने का नहीं, गलत नहीं है. जो खरीदोगे, अरे उसका तो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा. रात को वो बच गया, इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो गया. सो सिंपल एज दैट. देयर इज नो गड़बड़ व्हेन दे से इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक. द गड़बड़ इज गुड्स वर परचेस्ड एंड हियर बट नॉट रिकॉर्डेड, unrecorded sales. I'm sorry, unrecorded purchases. So in this question, point number 4 is about unrecorded sales and point number 6 is about unrecorded purchases. And everything when you record, plus 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 plus, minus नहीं कर सकते because है ही नहीं ना, record ही नहीं है, तो आपको plus करना ही पड़ेगा. Okay, I hope reading part हो चुका है. And please note, the adjustments are not difficult, but the sequence is very important. Okay, there are many students who solve it and वो tally भी कर लेते. So मेरा question तो बराबर आया, मेरा बैलेंस शीट दोनों सेम आया, बट माय डियर एडजस्टमेंट्स ना ऊपर नीचे हो गया. आपने जो क्रोनोलॉजी फॉलो करना था मिस्टर अमित शाह का, वो आपने फॉलो नहीं किया, आपको क्रोनोलॉजी नहीं समझा. दैट इज द मेन मुद्दा. ओके, राइट नाउ तो स्टार्ट करते हैं. किससे? हम सन्ड्री डेटर्स से. तो सन्ड्री डेटर्स कितना है? 40,000. चलो भाई, एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स, लीव 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन. नेक्स्ट
Purchases, trading account, debit side. 65,000. Returns, cross connection, credit side, sales return, 800. Opening stock, trading account, फर्स्ट लाइन में लिख लो. एक ही प्रॉब्लम था जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब वैसा एक प्रॉब्लम था, ओके, बट पॉसिबल है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, तो वो ब्लैंक रखने का. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, तो एसेट है. हाँ, लेट्स राइट ऑन द एसेट साइड आफ्टर 5 लाइन्स, 5 लाइन के बाद लीव 1 लाइन. एडजस्टमेंट, कैरेज इनवर्ड है, बोला नहीं है, बट दैट इज व्हाट वी थिंक. ओके, लीव 1 लाइन क्योंकि देयर इज एन एडजस्टमेंट. हाँ, वो परचेज के नीचे भी 2 लाइन्स, वी हैव अ पीसी एंड वी हैव एन एसडी, तो इवन सेल्स के नीचे 2 लाइन और परचेज के नीचे 2 लाइन. भूलना मत, बाद में आप बीच में गाड़ी पार्क नहीं कर सकते. ओके, यू हैव टू कीप लिटिल स्पेस, तो ही अपनी एडजस्टमेंट की गाड़ी जाएगी. हाँ, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पीएनएल में लिख लो. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 1000. नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स, सापरे, आर्टरे, डेबिट में, because we are in the debit, everything is being written in the debit. Salaries P&L में आ जाएगा 3200. नेक्स्ट, बैड डेप के फॉर्मूला में आ जाएगा इनर कॉलम 1000. देन मशीनरी, दिखता तो सिंपल है और इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट दे यूज द वर्ड एडिशन, तो ये 25,000 में अभी लिख लो. नाउ यू राइट, बाद में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट 4000. नेक्स्ट, लास्ट डेबिट आइटम, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. जब तक वर्कर रिटायर नहीं करता उसका पैसा प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो एसेट होता है, टेम्पररी एसेट. 18,500 प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500. डेबिट खत्म तो क्रेडिट स्टार्ट. सेल्स, तो चलो भाई सेल्स में लिख लेते हैं क्रेडिट साइड. एंड माइनस एंड पुट बिलो, नीचे, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है ना. 84,200. Next, sundry creditor, there is an adjustment even in creditor, so please leave एक line for solving that adjustment. 23,000. okay, next, income, sundry income, but it's an income. P&L account credit side by sundry income 2000. ओके, लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन में नेट लॉस आया था, वेल आज पता नहीं क्या होगा, बट इट वाज लिटिल डिफरेंट दैट वी हैड सॉल्व्ड. ओके, सो नेने काने का प्रॉब्लम था, अगर आपको नहीं पता. देन कैपिटल अकाउंट, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा 35,000. ओके, इफ यू आर हियरिंग background noises, sir you're speaking but I can hear behind people shouting, then वो सत्यवचन है. okay, because एक बंद कमरे में I am conducting this particular lecture which you watch later, but हमारे घर के हॉल में okay, हमारी धर्म पत्नी बच्चों को पढ़ाती है, और वो छोटे बच्चे तो उनमें थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम रहता है. okay, तो जितना भी मैं कोशिश करूँ वो वॉल्यूम कम होने वाला नहीं है. सो पॉसिबल है दैट अगर बच्चे चिल्ला रहे हैं तो वो या तो मेरी धर्म पत्नी है उनको चिल्ला रही है, या बच्चे दूसरों को चिल्ला रहे हैं. ओके, होपफुली दैट इज़ नॉट अ बिग डिस्टर्बेंस फॉर यू. ओके, प्रोविडेंट फंड, ये वर्कर का पैसा होता है, जब वो रिटायर कर जाएगा 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो उसको ये मिल जाएगा पेएबल 10,000. प्रोविडेंट फंड 10,000.
रिटर्न्स, तो ये हम लोग पिक्चर में बहुत देखते हैं, पार्ट 2 रिटर्न्स, पार्ट 2 रिटर्न्स। यहाँ पे तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये क्रेडिट में था, डेबिट में जाएगा। माइनस करके नीचे 63,500। नेक्स्ट इज a commission pre-received, you can say received in advance, it is a liability, that is very important। मतलब if you say sir commission में ऐसा होता है, no my dear, anything which is pre-received it is always a liability, because the concept of pre-received का मतलब क्या है, तुम्हारी जेब में है, तुम्हारा नहीं है। क्यों? हमने मेहनत ही नहीं किया है उसके लिए, जब मेहनत करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ओके, तब तक आपको सिर्फ सुरक्षित उसको रखना है, सुरक्षित आपको रखना है। ओके, अगर डील कैंसिल हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट, डील कैंसिल, तो पैसे उठा के आपको क्लाइंट को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज RDD, तो ये हमारे फॉर्मूला में आता है, ओल्ड RDD। लेटर ऑन वी विल सॉल्व एवरीथिंग एंड वी विल पुट इट इन द आउटर कॉलम। राइट नाउ हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, बट बाकी तो दुनिया भर के एडजस्टमेंट है। इनफैक्ट गूगली, उसके अंदर गूगली, उसके अंदर गूगली, ऐसे करके बहुत एडजस्टमेंट है। द फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक 23,000। हाँ, तो पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं हियर, एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में ऑल्सो हियर 2, 3। Then the plan is to go to adjustment number 2, depreciate land and building, no cost, 5%। like I said, no cost, 5%। कितना आएगा? अरे 500, 9,500, कोई कष्ट नहीं है। सेकेंड इफेक्ट PNL में लिख लेंगे। तो जस्ट टू शो यू, PNL में हम लोग दिमाग लगाया ना, लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन ढूंढने 500, बट इट इज़ नॉट सो सिंपल फॉर मशीनरी। क्यों? उधर क्या कष्ट है? कष्ट है, देखो देखने से पता नहीं चलता, ऊपर बोला है मशीनरी 10%। हाँ, तो 10% कर लो ना, अभी इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो है, क्योंकि वो 10% डायरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन समझ हमेशा, क्या बोला? एडिशनल ऑन, ये आप यहाँ पे देखो, 1 अक्टूबर 2018, अक्टूबर 18, तो व्हाट डू आई थिंक? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एडिशनल का मतलब क्या है? नया। मशीन 25,000 that you see is total. There are 2 machines in that, old, new. old पता है तो new पता चल जाएगा, new पता है तो old पता चल जाएगा। But 25,000 is not a singular machine, it is 2 machines. Therefore the depreciation of 10% also will be old, new, new, old. For that सबके दिमाग में फिट होता नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। सो यू कैन लेटर ऑन, आफ्टर आई डू द एंटायर थिंग, पॉज एंड यू कैन कॉपी। व्हाट आर वी डूइंग? सी, टोटल डेप्रिसिएशन ना 25,000 का है, उसके 2 हिस्से हैं। उन्होंने बोला है एडिशनल, तो वो 10,000 है, तो ओल्ड ऑटोमेटिकली 15,000। तो ये जो एडिशनल होता है, एडिशन, वो होता है नया, तो बाकी का बच्चा रहेगा ओल्ड। ये एडिशनल कब खरीदा आपने? 1 अक्टूबर, तो मतलब अक्टूबर से मार्च, कितना महीना? वो तो 6 मंथ्स होता है। ग्रेट। तो ये ओल्ड का क्या? ओल्ड हमेशा 12 महीना, वो एकदम स्टार्ट से एंड, अप्रैल से मार्च, स्टार्ट से एंड 12 महीना। सो द टाइम इज डिफरेंट। ओल्ड पे 6 महीना, वो कभी 9 मंथ्स हो सकता है, 4 मंथ्स हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है। वो काउंट करो, उंगलियों पे काउंट करो और उसका कैलकुलेशन अलग करो। ओके, तो 10,000 का अलग आर्ट फॉर्मूला कर लेते हैं, 15,000 का अलग आर्ट फॉर्मूला कर लेंगे। कितना आता है? देखो, उसका आंसर तो 500 आया, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। इसका आंसर देख लेते हैं, ये 15,000 के हिसाब से है, तो इसका आंसर आता है 1500, इसका आर्ट फॉर्मूला के हिसाब से। टू डेप्रिसिएशन, उधर का 500, इधर का 1500, जोड़ के कितना आया? 2000। हमको तो जोड़ के लिखना है, यू हैव टू राइट कंबाइन, बिकॉज वी हैव ओनली 1 लाइन फॉर राइटिंग डेप्रिसिएशन। हाँ, बट यू शुड नो कि जो दिमाग में प्रोसेसिंग हुआ है, प्रोसेसिंग मतलब ये जो कैलकुलेशन हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो, कैलकुलेट एवरीथिंग, ओके, एंड देन कंपेयर इट विथ माई कैलकुलेशन। आंसर इज कुछ इस तरह। सो वेन एवर
you see this word additional, in fact not in this chapter, in any chapter, be a little bit more conscious about your answer. अंधाधुंध सॉल्व मत करना प्लीज, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ गड़बड़. ओके, सो कितना है? अभी अभी आया ना 2000, आउटर कॉलम में 23,000, वो तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट. अब सेकेंड इफेक्ट कर लेते हैं पीएनएल अकाउंट में. ग्रेट, मशीनरी 2,500. सो ये इट लुक्स ऑल हंकी डोरी. मतलब क्या है, यहाँ पे तो बहुत सिंपल दिखता है, कुछ अलग नहीं है. नहीं भाई, पर्दे के पीछे बहुत मेहनत हुई है. हमने ओल्ड न्यू 6 महीना 12 महीना सब हमने तकलीफ ले ली है. तो भाई पर्दे के पीछे कोई भी पिक्चर या कोई भी वेब सीरीज़, ओके, या कोई भी प्रोग्राम, एनी फॉर्मेट ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो भाई ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, create provision for bad and doubtful debt, RDD, and write off 1,000 for bad debt. Now वो सॉल्व करना है, उसमें भी अदला बदली, बट इन 3 and 4 there is अदला बदली, बिकॉज इन 4th there is unrecorded sales. तो अगर आपको याद है क्या कि पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स आएगा, बाद में एडिशनल बैड डेट, बाद में न्यू आरडीडी. तो वेरी स्ट्रिक्टली आस्किंग, मैं तो यही फॉलो करूँगा क्योंकि ये सही है. तो भाई जिसको भी लाइफ में फॉलो करते हो तो प्लीज़ बराबर से सोच समझ के करेक्ट आदमी को फॉलो करो. यू शुड फॉलो. वन डे मे बी यू बिकम द लीडर, बट टिल दैट टाइम यू फॉलो द करेक्ट पर्सनैलिटी. ओके, सो 4th में क्या बोला? गुड्स ऑफ 3,000 वो सोल्ड. तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स. किधर लिखने का? अरे सेल्स में ऐड करो. कर दिया, अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000. आउटर कॉलम 87,200, तो कर दिया हमने. दूसरा कहाँ ऐड करें? डेटर्स. तो डेटर्स में भी ऐड कर रहे हैं. इफ समबडी सेज बट सर आप लिखते हो DS, तो पहले डेटर में ऐड करो. आई एम लाइक बॉडमास रूल के बारे में आप सोच लो ना. ऐड माइनस में क्या पहले प्लस किया, क्या पहले माइनस किया, दैट डजंट मैटर. ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गड़बड़ हो सकता है. हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ, आप डेटर में ऐड करो बाद में सेल्स में, या सेल्स में ऐड करो बाद में डेटर्स में, दैट्स फाइन. बट एडजस्टमेंट 4 को 3 की जगह पे एंड 3 को अभी 4 की जगह पे. बट व्हेन यू डू दैट इन एडजस्टमेंट 3 पहले दिया है न्यू आरडीडी, वो पहले मत कर. पहले कर एडिशनल बैड डेट विच इज़ इन एडजस्टमेंट नंबर 3 1,000. सो पहले तो मैं माइनस करूँगा फर्दर एडिशनल बैड डेट, so the balance is 42,000 and then P&L. एक ये हो गया. अभी करता हूं मैं न्यू आरडीडी. सो 5% था, 42,000 का आपको आएगा 2,100 एंड देन दी आउटर कॉलम 39,900. अब ये 2,100 का जो सेकेंड इफेक्ट है वो बनो फॉर्मूला, एंड देन 1,000 प्लस 1,000 2,000 प्लस 4,100 माइनस 400, दैट इज़ योर आंसर. इतना जो मेहनत करते हो ना, इतना जो अगर पसीना आता होगा तो ओके पॉसिबल है. घर में अगर लाइट वाइट नहीं होगा तो हाँ, इनर कॉलम का कोई कुछ नहीं देखेगा, आउटर कॉलम में ही मार्क्स मिलेगी. एग्जामिनर को टाइम नहीं इनर कॉलम देखने के लिए, उनको कितने पेपर्स करेक्ट करने पड़ते, तो आउटर कॉलम देखते हैं एंड उसी के ऊपर मार्क्स बेस्ड होते हैं. Adjustment 3, adjustment 4, adjustment 1, 2, 3, 4, done. 5th, outstanding carriage. वो तो carriage inward जहाँ पे है वहाँ पे प्लस कर लो. कितना? 500, तो टोटल आएगा 1,700. सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी से. चलो लेट्स राइट आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड. इफ यू राइट कैरेज इनवर्ड कोई तकलीफ नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स परफेक्टली करेक्ट. एंड 6th adjustment just above my head, in fact slightly in my head. Goods of 8,000 were purchased on 31st March. That's the last day. Last day is always confusion. Last में बोला but not recorded, so I will record it. We call it unrecorded purchases. The important thing not to misunderstand is included in closing stock. Well, हर दुकानदार जो खरीदता है उसको परचेसेस कहते हैं. उसी में से जो माल बच गया
वो बन जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक परचेस का ही हिस्सा है, परचेस को क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी अपने आप हवा में क्रिएट होता है, नहीं, जो खरीदा वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ओके, तो देयर इज नथिंग गड़बड़ ऑफ दीज वर्डिंग्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, डोंट टच क्लोजिंग स्टॉक। बाकी अनरिकॉर्डेड परचेसेस आप डेफिनेटली सॉल्व करो, लेट्स डू दैट। तो राइट अबाउ 8000 ऐड किया आउटर कॉलम में 71,500, देन क्रेडिटर, बिकॉज क्रेडिटर से आपने खरीदा, सॉरी, सो 31,000। ऑल एडजस्टमेंट्स, एक वॉज लिटिल ट्रिकी एडजस्टमेंट ऑफ मशीनरी डिप्रिसिएशन, एक वॉज अ लॉट ट्रिकी about adjustment number 3 for bad debt and adjustment number 4 for unrecorded sales. Everything is done previously, नया बिल्कुल नहीं है, बट जब एक ही क्वेश्चन में उसको मल्टीपल टाइम्स घुमा फिरा के एक माया जाल बना के आपको दिया जाता है, तो ओनली द बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ये गूगली को परख लेता है, बाकी के लोग बोल्ड हो जाते हैं। सो आई एम नॉट श्योर आप कौन सी कैटेगरी में गिरते हो, परख लिया या बोल्ड हो जाओगे, बट प्रैक्टिस। बोल्ड हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, एग्जाम में मत होना, उसके पहले एवरी बैट्समैन बॉलर, ओके, मैच 5 दिन का होगा या 1 दिन का होगा या T20 20 ओवर का होगा, बट प्रैक्टिस के टाइम पे दे प्लेस अ लॉट ऑफ बॉल्स, बिकॉज गलती प्रैक्टिस के टाइम पे करो, दैट इज द रीजन प्रैक्टिस इज मेंट फॉर। जब मेन शो होगा, तब जब लाखों लोग देखते हैं टीवी पे, जब हज़ारों लोग स्टेडियम में आते हैं, यू कांट मेक एनी मिस्टेक्स। राइट नाउ इज द टाइम फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई डेबिट का टोटल इज 91,200, क्रेडिट इज मोर, तो 1,10,200 से मैं माइनस करूँ तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इज 19,000। यहाँ से इनको उठाओ, अगली पेज पे लेके जाओ क्रेडिट में और लिख लो ब्रॉट डाउन। दिस साइड इज द हेवियर साइड एंड दिस प्रॉब्लम, क्योंकि डेबिट आप देखो इज 14,400, तो दिस टाइम वी विल नॉट गेट अ डेबिट बैलेंस। क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट भारी है ना, 21,000, इसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, इनकम भारी, तो प्रॉफिट आएगा, जो हमेशा ऑलमोस्ट एवरी सम में हमको आया है। ये प्रॉब्लम में तो ये जो सापरे आटरे हैं, इनके बीच में कोई झगड़ा भी नहीं है, इन्होंने बोला हाफ हाफ, हैप्पी हैप्पी, हाफ हाफ। हाँ, तो 3,300 3,300, पिक इट अप फ्रॉम हियर, अगली पेज पे दिस इज 2, तो अगली पेज पे बाय 2 का मतलब है डेबिट, तो अगली पेज पे क्रेडिट होगा ना। एंड देन वी विल फिनिश अप द कैपिटल अकाउंट ऑफ सापरे एंड आटरे। सापरे को टोटल करूँ तो 38,300 आएगा, डेबिट में 3,000 माइनस करने के बाद में 35,300, दे लुक वेरी सिमिलर, ओके। तो यहाँ पे 38,300, वहाँ पे 35,300, एंड मेनी स्टूडेंट्स लिखने में गड़बड़ कर देते हैं बिकॉज दे गेट कन्फ्यूज्ड इन दी नंबर्स विच आर गिवन। अभी एग्जामिनर जानबूझ के करता है कि अनजाने में हो गया, आई रियली डोंट नो, बट ध्यान आपका ज़्यादा होना चाहिए। 36,300, when I transfer this to the liability side, जब मैं ऐड करके ये दोनों के कैपिटल को बाहर लिखूँ, मुझे 71,600 आता है। तो आप वो लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्लीज़ याद रखना, इट्स ऑलवेज रफ वर्क, यू डोंट गेट मार्क्स, बट उसमें से जो आंसर उत्पन्न होता है, मतलब 35,300 36,300, दैट गिव्स यू मार्क्स। एंड लास्टली द लाइबिलिटी साइड and the asset side, totals have to match, which is 1,13,900. Okay, so today's question purely concentrated on the googly aspect of the adjustments, के adjustments करना तो है, but उसका sequence क्या है, उसका chronology क्या होता है, पहला क्या, दूसरा क्या और तीसरा क्या। ओके, आई होप आज का explanation आप सभी को समझ में आया, एंड अगर आपको समझ में आया है तो आप लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कोई कमेंट्स है, कोई डाउट्स है, अगर कोई सवाल है जो ये क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, कर लीजिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो बेल आइकन दबा दीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम का जो चैनल है उसके साथ में जुड़ जाइए, बिकॉज ऑन द टेलीग्राम चैनल वी विल ऑलवेज कॉन्स्टेंटली पोस्ट कि कल का शेड्यूल क्या है लेक्चर्स का। एंड सेकेंडली ऑल्सो वेरी वेरी important, some practice questions will be some test questions will be given on the telegram platform, so you can solve it and then जो आंसर है वो भी शेयर कर लेंगे या उसका हम आपको लेक्चर वीडियो बता देंगे, ताकि वो प्रैक्टिस के लिए, आपको पढ़ाई एक बार होती है उसके बाद में लगातार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जो पढ़ा है उसी को तो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके हाँ, सीखना एक बार होता है, प्रैक्टिस आपको बार बार करना पड़ता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स, आई एम नॉट सेइंग मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ इंसान परफेक्ट, वेदर इट इज़ अ मैन और अ फीमेल। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, जो भी आपसे प्यारे हैं सबसे प्यार करना। ओके, आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।